आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी डॉक्टर शहबानो, यू आर लाउड एंड क्लियर। ठीक है, मैं एक मिनट वीडियो भी ऑन कर दूं। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शहर बानो हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और केमिकल पैथोलॉजिस्ट हूँ, कंसल्टेंट केमिकल पैथोलॉजिस्ट इन फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर। आज इट्स लाइक अ थर्ड वीक ऑफ दिस वर्कशॉप, तो हम ऑलमोस्ट मिड ऑफ वर्कशॉप पे हैं। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन एलजे चार्ट की किस तरह होती है, वेस्टगार्ड रूल्स की इंटरप्रिटेशन क्या होगी, और हम अपनी लैब में किस तरह इसको यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये आपको फुल स्क्रीन आ रही है सामने या हाफ स्क्रीन शेयर हो रही है? डॉक्टर शहबानो, आपने फुल स्क्रीन नहीं किया हुआ, आप फुल स्क्रीन कर लीजिए। फुल स्क्रीन कर लूं? ठीक है। ठीक है, अब सही है जी फाइन। जी। So at the end of the presentation, the participants would know about the calculations that are required to plot an LD chart, and they understand how to construct an LD chart, and they understand the interpretation of LD chart and Westcard rules. So let's discuss a brief history about Levin-Jennings chart. Basically, this LJ chart was first invented by Dr. Shewart. He was a physicist and some statistician in USA. He invented this chart in 1924 for the control to interpret the control quality control in the industrial processes. Then in 1950, S. Levy and E. R. Jennings suggested the use of the same Shewart rules in the clinical laboratories. And that's why they're called LJ on the name of these two. Hota ke LJ chart, it's a graphical, it's basically it is a graph on which a quality control data is plotted, and it will give you a visual presentation whether your laboratory test is working well or not. How can you create an LG chart in your clinical laboratory? There are two ways actually. For the first one is either you use a manual method, or the second one is the computer system. For if you are plotting your chart manually, then you need a calculator and graph papers. And if you are using a computer, then वैसे तो अब in each and every lab we have such a sophisticated analyzers in our laboratories. They produce the LJ charts, right? But if your analyzer is not producing the LJ chart and you want to plot your LJ chart in your lab, it is not possible कि आप हर इतने टेस्टों के manually बैठ के करें. You should know how to manually plot this chart, but analyzers automatically produce LG charts, and if your analyzers are not capable enough, then you can buy external QC programs. There are different names for that. You can buy जिसे हम कहते हैं रियल टाइम क्यूसी, एंड वो आपको फिर पूरा क्वालिटी कंट्रोल का प्रोग्राम देगी. इसके अलावा यू कैन प्लॉट द LG chart on Excel software as well, MS Excel as well. So, what do you need first to plot an LJ chart? देखें हमेशा आप तो सबसे पहले you have to decide your decision limits. What decision limits you are using in your lab, and then you will use the standard deviation to set the limits. क्या limits होंगी आपकी 1ST, 2ST, and 3ST from the mean. ठीक है. The very important point which I have highlighted in my slide as well is that a chart should be created for each test in your lab and each level of control in your lab. If you are running a tri-control level, if you are running a two controls, each control level the chart should be created for each and every control level. ठीक है. This is very important. Not only कि अगर आपने दो levels करिए और आप एक level का chart plot करें, that is useless. So this is an example. Let's discuss कि सबसे पहले आप क्या करेंगे. You will calculate a mean. अच्छा, I'm not going to tell you how to calculate mean. This is so simple and it is available online
and on in every software, in every computer, in like you can Google it or you can have your calculators with you. मैं आपको एक manually बता देती हूँ कि आपने if you run 20 quality control 20 controls in your lab, ठीक है, तो you will have 20 values, right? So how will you calculate your mean? You will add all the 20 values together and divide that answer with 20. Then you will get your mean. ठीक है? Then you will calculate the standard deviation. Achha, there are two ways to calculate the standard deviation. One is the calculation of standard deviation by manually. Like इसका एक formula होता है. I'll show you the formula as well. उसमें आपको पहले mean calculate करना है, फिर mean square calculate करना है, फिर वो पूरा एक formula है, right? But in every sophisticated system, in every sophisticated, if you have a scientific calculator, there's a very easy ways how to calculate standard deviation. So I would prefer कि आप standard deviation को you can calculate online. I'm not talking about कि आप अपना part 2 के exam के लिए बैठे हैं और आप कर रहे हैं, उसमें भी हम calculate standard deviation उससे ही करते हैं calculator से, ठीक है? तो rather than using that formula, you can calculate the standard deviation from your softwares and from online from your calculator. So once you have calculated your mean, your standard deviation, and then you will calculate your 1ST, 2ST, and 3ST. For example, if your mean is 100, then your 1ST will be, the low range will be 9, like that, एक आप plus minus ST होती है ना, मैं आपको भी आगे explain करती हूँ. तो plus ST होगा 102, क्योंकि आपकी SG2 है, इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं, पता नहीं पॉइंटर आपको नजर आ रहा है, देखें ST is 2, mean is 100, right? So your plus 1 ST is 102 and minus 1 ST is 98. Similarly for 2 ST, your plus 1 ST, इसमें से आप 2 को और प्लस कर देंगे 1 ST में, और इसमें 2 को माइनस कर देंगे. एंड 3ST के लिए इसी 2ST में आप फिर मीन को ST को प्लस कर देंगे और ST को माइनस कर देंगे. देन दिस इज द वे यू विल गेट योर 1ST, 2ST and 3ST values. Now the percentage of data points, they are also showing here. So what are these percentages? These are basically Gaussian Gaussian rules. ठीक है, ये I hope आप everybody knows about it. ठीक है, तो Gaussian rules क्या कहते हैं कि in under the normal circumstances, the data point should fall 68% data point should fall in 1ST range, right? Under normal circumstances, 95% data points should fall in 2ST range. And under normal circumstances, 99.7% data points should fall in 3ST range. इसको मैं थोड़ा सा आगे और टच करूंगी, आपको थोड़ा सा और क्लियर करूंगी. Let's move forward. This is your LJ chart. This is the basic information you need to mention on your LJ chart. The name of your laboratory, the name and identifier number of your instrument, right? If you have two instruments, you have two different instrument numbers. So आपको name of the lab, name of your instrument and identifier your of the instrument देना. Then the name of your analyte, you're going to plot LJ chart for, lot number, कंट्रोल मटेरियल, यूनिट्स, एक्सपायरी डेट, एसटी जो आपकी आ रही है, ठीक है. फिर आपने कब से कब तक का आप ये चार्ट प्लॉट कर रहे हैं. इफ यू वांट टू गिव योर टारगेट एंड योर टोटल अलाउबल एरर, यू कैन गिव आल्सो. इफ यू डोंट वांट टू ऐड दीस टू, यू कैन स्किप इट, ठीक है. दिस इज हाउ यू कैन प्लॉट योर एलजे चार्ट. नाउ यू नीड अ ग्राफ पेपर. On your y axis here, you can see there is a mean. Here is the mean, right? यहाँ पे ये x is the mean. It is the center of the line. Mean आपका जो भी होगा, आपकी सारी average of your जो control value होता है, that is mean. आप यहाँ पे mean plot करेंगे अपना. Mean के बाद आपकी calculation होगी जो 1ST की. यहाँ पे आप 1ST plot करेंगे, फिर then 2ST, 3ST, और नीचे इसी तरह -1ST, -2ST and -3ST, right? अच्छा, on your x-axis, either you can plot something else. Then what is this something else? This something else is the number of days, either day number 1, day number 2, day number 3. आपने day number 1 पे जो run किया control, you can plot this at day number 1, or you can plot your run, number of run here, okay? So on x-axis, आपका जो अगर if you have your run or if you have day, तो आप वो
प्लॉट करेंगे ऑन योर एक्स एक्सिस. दिस इज हाउ यू कैन प्लॉट योर. उसके बाद जो आपकी वैल्यू आएगी उसकी control key, you start putting your control values on the chart and eventually you will connect them with the straight lines. तो आपको एक graphical presentation मिल जाएगी on your LJ chart. ठीक है? This is how you will construct your LJ chart. Now let's move forward. अच्छा, if you have two level of quality controls in for example हम AST की example ले लेते हैं. You are running two levels of quality control for AST. 20 days का आपका run है. आपने कैलकुलेट किया मीन और एसटी को. ठीक है, आपने एवरेज ले लिया मीन का और एसटी का, और फिर आपने कैलकुलेट किया 1ST को, 2ST एंड 3ST. अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक चार्ट इस तरह बनाना है. आपने ये आपको मैं मैनुअल बता रही हूँ. सीरियल नंबर होगा 1 2 3 4 से लेकर 20 तक, ये सीरियल नंबर आ जाएगा. ये आपका आ जाएगा कंट्रोल नंबर 1 जो आपका हाई कंट्रोल है, उसकी वैल्यू 76 68 75.4 ये आ जाएंगी, और ये आप 92 84 आपका कंट्रोल लोअर कंट्रोल है. ठीक है, तो दोनों कंट्रोल आ गए. दी 20 वैल्यूज दोनों कंट्रोल्स की हो गई. देन यू विल कैलकुलेट योर मीन एंड देन you will calculate your ST. ठीक है, and after that you will plot the same things on your chart paper. This is AST control 1, this is AST control 2. One is a higher level, other is a lower level. For higher level you will plot mean ST 76.7, 81 is a negative, और फिर उसके बाद you will start putting your control values and then you will construct an LJ chart like this. ठीक है. Now let's discuss about Gaussian curve. Basically, I hope everyone knows about it. What is Gaussian curve and how it will help to interpret your LJ chart. Basically, Gaussian जो bell ये जो curve आपको नजर आ रहा है here, this is the Gaussian bell curve. ठीक है, ये parametric आपकी पूरी उस डेटा की प्रेजेंटेशन है. इसमें होता क्या है कि जो आपका सेम थिंग है कि आपका जो 1ST में फॉल करेंगे डेटा पॉइंट्स वो 68% होंगे, देन 95% इन 2ST एंड 99.7% इन योर 3ST रेंज. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस दिस ऑन द LJ चार्ट. सो you draw a line on your y-axis on a chart paper, graph paper. Then you calculate your mean and STs, and then you draw a number of days or runs on your x-axis, and you have your LJ chart. It's very simple, right? Up on your left, here you can see a Gaussian curve here. ठीक है, तो आप इससे आप किस तरह इसको इंटरप्रेट करेंगे ये देखते हैं. इस तरह का आपका होगा डेटा पॉइंट्स. ठीक है, Here you can see आपके पास दो लिमिट्स हैं. एक 3ST की लोअर लिमिट है कंट्रोल लिमिट, एक प्लस 3ST की कंट्रोल लिमिट है अपर. ठीक है, तो you have two control limits on your LJ as well. ठीक है, on and Gaussian curve as well. So here you can see these are all the blue color में, the blue dots are all the data points that fall between your minus 3ST and plus 3ST, and the one red color data point is outside your 3ST. Here it shows that it is out of control, and all the blue ones are within your minus 3ST or plus 3ST. That means they are within your control limits, but the red one is outside your control limits. So let's see it on the LJ chart. On the LJ, ये किस तरह से present होगा? Here you can see these are the control limits that are within your 3ST limits, and here you can see there is a red spot which is outside your 3ST, minus 3ST. तो on the LJ it will show like this. ठीक है, सो ये एक रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बताती हूँ कि आप डेविएशन को LJ पे किस तरह पिक करेंगे. how you will pick the deviations on the LJ chart and how will you interpret that deviations जो आपको हेल्प आउट करेंगे कि अब करना क्या है. what will be your next action, आप ट्रबल शूट किस तरह करेंगे उसको. ठीक है, और आप एरर को किस तरह डिटेक्ट करेंगे. तो दिस इज अ सिंपल LJ chart. Here you go, and this is how you will plot the control values on the LJ, and you will have your LJ like this, zigzag. ठीक है, few controls are going up and down and up and down around your mean. The zigzag is going on.
Then if you tilt your LJ vertically, देखें पहले LJ आपका horizontal था, मैंने उसी LJ को tilt कर दिया vertical. I'm sorry if it's a poor picture quality. I hope all you can see it and understand it कि ये अब vertical हो गया, right? जो LJ ऐसे था horizontal, उसको मैंने ऐसे कर दिया, तो अब ये vertical position में आ गया है. और अब जितने ये blue points आपको नजर आ रहे हैं, जिनको मैंने join किया हुआ है with a scale, with a pencil boundary line से, these blue points अगर मैं इनको ऊपर ले जाऊं like this, here now you can see that all the blue points are above the LJ chart. तो ये क्या बना रहा है, ये आपको पूरा एक बेल शेप कर्व बना रहा है, राइट? हियर यू कैन सी इट इज शोइंग यू इट इज फॉलोइंग द गॉसियन रूल्स. ठीक है, सारे डेटा पॉइंट्स आर विद इन द डिसीजन लिमिट्स आपके, राइट? नाउ द what happens if your LJ is expanded, widens, right? अगर आपका यही LJ चार्ट जो नीचे आपकी ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है वर्टिकली जो अब शो हो रही है, अगर ये एक्सपैंड कर जाए तो क्या होगा? Here you can see your LJ is expanded. It is crossing your decision limits. And जब नीचे decision limits cross हो रही है LJ पे, तो आप देखिए ऊपर Gaussian curve भी इसका flatten हो गया है. It is more expanded. Now it is not following the rule of 67%, 95%, 97%, right? It is now violating the rules and it is widened as well. So what it is showing, the widened curve shows that it is a random error. Now uh, what will your corrective action? आप अपने corrective action सबसे पहले आप अपनी सारी investigations वो करेंगे जो random error के लिए होती हैं. ठीक है, you should know what are the random errors. इसके बाद क्या कॉज कर सकते, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रैंडम एरर कॉज करते हैं. ठीक है, एंड इफ यू नो अबाउट द रैंडम एरर्स, उनके कॉजेटिव रैंडम एरर के कॉजेस, देन यू नो अबाउट कि आपको ये पता होगा कि आप आगे उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, राइट? दिस इज हाउ यू कैन इंटरप्रेट योर LJ चार्ट. Now let's have another example. Here you can see that my LJ is shifted towards right. Look at this picture here. This is the Gaussian curve. Here is the whole LJ is shifted. The whole blue points, dot points are shifted towards, right. Okay? And on the LJ, here you can see the whole of your LJ is shifted towards one side. Now it shows that, if the LJ is shifted towards one side, it shows that there is some systematic error. Now, you should know the causes of systematic error first. Then you will investigate those causes one by one to see कि आपके पास इस पर क्या इशू है कि ये पूरा का पूरा आपका कर्व शिफ्ट कर गया. ठीक है. Now, if you start, this is a picture. I really like it. That's why I'm putting it here. Train your eyes to see and train the eyes of your staff to see. Why? Because if you're just constructing and you are saying that I am constructing an LJ chart in my clinical laboratory, and you think you're fulfilling the whole क्या कहते हैं वो फर्ज आपने निभा दिया है, तो it's not like this. If you are constructing the LJs and you are not critically evaluating it, you are not seeing it, you are not investigating the LJs on daily basis or whatever your आपका schedule है, तो it is not paying its जो उसका काम है LJ का, वो आपको उसका फायदा नहीं होगा. ठीक है. So you should have train eyes to see, and you should train your staff to see as well. You cannot say that you have your quality manager who is going to see this LJ at the end of the month or a 2 month. So that's useless. If you want this LJ कि वो आपके लिए productive हो और वो हेल्प करें जो उनका मकसद है बनाने का, देन यू हैव टू सी इट मोर फ्रीक्वेंटली. और इनिशियली यू हैव टू सी इट. एक और पिक्चर मैं आपसे शो करती हूँ कि इफ यू आर यू कैन इसको आप गौर से देखें इस पिक्चर को. हियर इट इज शोइंग अ ग्रास, बट अगर आप उसको फोकस करेंगे ऑन द सर्कल, देयर इज अ ग्रास होपर इन द सर्कल. एक मिनट रुकिएगा, मुझे कुछ मैसेज आया है. लेट्स, क्या मूव करना है मैंने, सॉरी, ये मूव करना है. अच्छा चले, मुझे आप पहले बोल देते तो मैं इसको पहले मूव कर देती.
ठीक है, अब आप लोग क्लियर हो रही है ये? आई डोंट नो, ये पहले नहीं आ रहा था। ठीक है, हियर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ द ग्रास। अगर आप इसको एज अ होल देखेंगे, गौर से नहीं देखेंगे, तो आप कहेंगे इट्स अ ग्रीन कलर ग्रास ऑन द ग्राउंड, बट इफ यू लुक carefully on the picture, here you can see there is a grasshopper sitting on the grass. So you need this type of eye to pick the errors on your LJ chart. So the question then arises कि आप कितना frequently monitor करें अपने LJs को. The example is like a baby. If it's a newborn baby, then you review it more frequently on a daily basis, because the random error is so sudden, you can pick it immediately, right? For the random error, if you review your charts, you can pick your random errors immediately. And so if it's a newborn, it's a new system, you should review it more frequently. But agar if it's a toddler, फिर आप उसका according to your laboratory, clinical laboratory schedule, according to your quality control module, you can review it periodically. So the next step, next thing which is very important is a documentation of your quality control system. So 4 main kinds of documentations that are required in for this quality system is the values of your daily run. You should document it. This is very important. Your corrective action proof, the evidence for the remedial actions in the event of QC failure. If you pick it कि आपने देख लिया कि this is the कि आपकी QC जो है वो sorry, अगर आपने देख लिया तो you should document it. So you should have your corrective action form in your labs, and you should have your corrective action proof. Then the LJ charts monthly and CV percentage tracking for at least 6 months. ISO deals with the assurance of the quality of examination, and any non-conformance in this area is dealt as a major non-conformance. ठीक है? So you have to have document your QC-related activity in your laboratory. So let's see what now you have plotted your LJ. ठीक है, लिविंग जेनेस आपने प्लॉट कर लिया, आपने मीन निकाल लिया, आपने एसडीज निकाल ली, you have plotted your x-axis, y-axis, you have plotted your 20 or 30 quality control values on it. Then now what's next? Then next thing is the Westgard multi-rule. Now you will apply the Westgard rules in your lab. But first you should know what are the Westgard rules. So Westgard rules are developed by the Mr. Westgard, Dr. James O. Westgard. They actually picked a statistical concept and they applied it in the clinical laboratories. They actually specifies that LJ chart. They makes the use of series of control rules for interpreting the control data. इसका advantage क्या है कि they has the advantage that the false rejections are reduced. ठीक है? And they are very sensitive to errors and they are more organized. So this is the picture of Mr. Dr. Westgard. These are the Westgard multi-rule system. At least there are so many Westgard rules. If अगर आप इनकी website पे जाएं, Westgard quality control की, so you will see a lot of Westgard rules. But these are the basic you should know about it, and you should, you can apply to your lab. So let's discuss one by one. So first is the 1-2S. 1-2S क्या है? It is a warning rule. This is the only rule that is a warning rule. I'm telling you. बाकी सारे या तो सारे rejections हैं. This is the only जो आपको warn करता है. And एक मिनट रुकिएगा प्लीज. आई डोंट नो, मुझे एक मैसेज उनका आ रहा है आपके तरफ से कि प्लीज मूव दिस. क्या मूव करूं मुझे नहीं समझ आ रहा. Dr. If you Shahbano, are kindly. difficulty in seeing my slides, please मुझे कोई और बता दे खुद ही. Dr. Shahbano, इसमें किसी किस्म का कोई Clear, then difficulty we can नहीं है. move on. It's very much fine. You can continue. Okay, ठीक है. Thank you, Dr. Rishi. I got it. So the Westgard rules में 1-2S में क्या होगा? This is a warning rule. ठीक है? इसमें क्या होता है कि जो 1 आपकी control value है that falls outside your 1 ST. Let's see what कैसे.
ये देखें, ये एक वेस्टगार्ड एक सॉरी एलजे चार्ट है. हियर इज द मीन, हियर इज द 1ST, हियर इज द 2ST. ठीक है, एंड हियर इज द 3ST. अब आपने देखा कि 1 to S रूल की वायलेशन कहाँ हो रही है, जब आपका एक जो रूल है दैट फॉल आउटसाइड योर 2ST. ठीक है, 2ST से बाहर, ये 2S जो शो कर रहा है ये मतलब आपका एक क्वालिटी कंट्रोल 2S से बाहर चला गया है. तो इसका मतलब क्या है कि आपकी वायलेशन हो रही है 1 to S की. अब इफ इट इज अ वार्निंग रूल, सॉरी वापस जाते हैं, इफ इट इज अ वार्निंग रूल तो आप क्या करेंगे, आप उसको ये करेंगे कि आपने अलर्ट हो जाना है. ठीक है, आपने वेट नहीं करना कि जब मेरा पूरा सिस्टम खराब होगा तो मैं कोई एक्शन लूंगा. आपको समझ आ गया कि समथिंग इज रॉन्ग विद माय सिस्टम. तो आपने पहले ही अलर्ट होकर अपने सिस्टम को मोर कीनली क्या कहते हैं वॉच करना है. ठीक है, इफ यू आर हैविंग 1 to S इन योर सिस्टम. Then the next rule is Vesca rules 1 3S. ये कब होगा? इट इज वेरी इजी. अगर आप इस 1 3S और 1 2S को समझ लेंगे तो इट इज इट विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स. अब 1 का मतलब है कि एक कंट्रोल वैल्यू की बात हो रही है, एंड 3S का मतलब क्या है कि 3SD से वायलेट कर गया. दिस इज सो सिंपल. ठीक है, तो आपका 1 कंट्रोल इज वायलेटिंग द आउटसाइड द 3SD. दिस इज 1 3S रूल वायलेशन. हाँ, अब ये आपको क्या बताएगा, अगर 1 3S हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई रैंडम एरर है. अब आपको वही अगेन, इफ यू नो द रीजंस कॉजेज ऑफ रैंडम एरर, if you know how to investigate the cause of random error, and if you know the corrective actions that are required to remove this random error, then the whole process will be completed. ठीक है, you're starting from your LJ chart की क्या कहते हैं observation, picking up the rule violation, then saying the क्या reason है, either it is a random or systematic error, pick up the one, then the causes and then the corrective action. This is the, फिर आप पूरी वो अपनी नमाज जो है पूरी आपकी हो जाएगी. ठीक है, this is another picture of 1 3S violation. मुझे टाइम का आइडिया नहीं हो रहा है. You have time. So next is 2 to S, and 2 to S में there are two rules. There are two consecutive control measurements exceed the 2ST. सही है, on the same side of the mean. इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, by the way ये सब रिजेक्शन है. 1 3S भी रिजेक्शन है एंड 2 to S भी रिजेक्शन रूल है. ये अब वार्निंग रूल्स नहीं है, सब रिजेक्शन रूल्स हैं. Patient results cannot be reported and it requires a corrective action if you are having a 2 to S in your system. So what is 2 to S is saying? You have two consecutive quality control outside your 2SD. This is important. So ये two consecutive होने चाहिए. The next is the range 4S. What is range 4S? R is for range. Range 4S का मतलब है कि first of all it is a rejection rule. ठीक है. Second of all कि ये आप देखें कि this is 2SD plus 2SD. This is your mean and this is your minus 2SD. Now here you can see, आप सर्कल को देखें सिर्फ. आप अगर +2SD से एक आपका बाहर चला गया +2SD से, और सिमिलरली एक आपका -2SD से चला गया, तो अगर आप इसको एज अ होल काउंट करेंगे तो ये 4 बन जाएगा. तो इसलिए इसको कहते हैं रेंज 4S. आपका एक क्वालिटी कंट्रोल ने एक्सीड कर दिया +2SD को, और एक क्वालिटी कंट्रोल ने एक्सीड किया -2SD को. तो इसको एज अ होल देखेंगे तो ये बनेगा रेंज. एक टोटल आपका 4 बन जाएगा. तो इसलिए इसको कहते हैं R4S. एंड इट इज अ रिजेक्शन रूल and it shows you have a random error in your system. Now the next is the 4 1S. अब ये R4S है, ठीक है, और एक 4 1S है. 4 1S is very simple कि आपके 4 consecutive quality control जो हैं वो outside होंगे किसके? 1S के. ये देख रहे हैं 1S मतलब 1SD, इसका मतलब है 1SD. So here is the mean, here is the plus 1SD, 2SD and 3SD. And similarly there -1SD, -2SD, -3SD. Here you can see कि आपके 4 quality control rules are violating consecutively outside your mean. ये देखें इस circle को. Here you can see, yes, this is your circle. This is 1 2 3 4. These are the 4 consecutive. अगर इसमें से एक भी वापस चला जाता तो ये 4 1S का रूल नहीं लगता. फिर क्या लगता है बताएं, कोई बताएगा? अगर मैं इन दो को यहाँ से निकाल दूं और सिर्फ 2 हो जाए बाहर,
इस 2 को थोड़ा 2 के भी नीचे कर दूं तो ये 2s बन जाएगा, ठीक है। ये जो 2 क्वालिटी कंट्रोल हैं अगर ये 2 से नीचे आ जाएं और कंसेक्यूटिव हो जाएं और बाकी 2 नॉर्मल, तो ये 2s बन जाएगा। लेकिन अगर 4 जो हैं वो कहीं भी मीन से बाहर होंगे कंसेक्यूटिव, तो वो बनेगा 4 1s, सॉरी 1s से बाहर होंगे तो 4 1, तो मतलब 1sd से 4 कंसेक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल आपके बाहर फॉल कर रहे हैं। और ये आपको शो करेगा कि देयर इज अ सिस्टमैटिक एरर इन योर सिस्टम। Then this is a very interesting rule, and this is very easy to pick actually. इसमें क्या होता है कि 10 आपके you have the 10 consecutive control measurements that fall on one side of your mean. The 10 consecutive observations fall on one side of your mean and it shows a rejection and systematic error. मतलब this is your mean and आपकी consecutively 10 measurements is outside the mean. तो इससे क्या हो रहा है, आपका ग्राफ शिफ्ट हो गया ना। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, एक था वाइडनिंग और एक था शिफ्टिंग। तो इट शोज द शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग होगी तो मैंने क्या बताया था कि शिफ्टिंग होगी तो इट विल शो इट विल ये आपको लीड करेगा टुवर्ड्स योर सिस्टमैटिक एरर। सो 10x rule is also showing a systematic error. This is another example of 10x. ये देखें यहाँ से डे 5 से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ से देखें ये डे 1 2 3 4 ऑल गोइंग वेल एंड परफेक्टली। डे 5 पे ये डाउन हुआ है एंड देन टिल डे 15 तक ये कंसेक्यूटिव वैल्यूज आउटसाइड आपके एक तरफ मीन के आ गई हैं। तो व्हाट इज शोइंग, इट इज शोइंग अ 10x वायलेशन। दिस इज अ वेरी कॉमन पिक्चर, ये आपको हर जगह मिलेगी। आई गेस आपने आपकी शायद लैब्स में भी लगी हो और आपको बुक्स में और वेस्ट गार्ड की साइट पे मिलेगी। व्हाट इट इज शोइंग, इट इज शोइंग दैट यू हैव 1 2s अगर आता है तो आपने रिजेक्ट नहीं करना, इट्स अ वार्निंग रूल। सो इफ योर कंट्रोल्स आर इन आपके सही हैं तो आप रन को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपका 1 2s आ रहा है तो आप फिर आप देखेंगे क्या 1 3s तो नहीं है। अगर तो नहीं है देन यू विल सी ये 2 2s, देन यू विल सी योर रेंज 4s। आप सारे अपने रूल्स को देखेंगे और अगर सब नहीं है तो फिर तो आप मूव फॉरवर्ड करेंगे, और अगर है तो इट्स मीन योर सिस्टम इज आउट ऑफ कंट्रोल एंड यू विल रिजेक्ट द रन, ठीक है। सो दिस एक्टिविटी, आप लोगों को मैं एक एक्टिविटी दे रही हूँ। मुझे नहीं पता कि इसमें हम इंटरेक्शन कर सकते हैं अभी या आप मुझे बाद में सबमिट करा सकते हैं। डॉक्टर यू कैन सबमिट इट डॉक्टर अर्शी, और योर जो भी आपके यहाँ पे इस वक्त लेंगे ईमेल एड्रेस आपके पास होगा, आप उनको भी ये दे सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप ऑब्जर्व करके आंसर्स अपने नोट डाउन कर लें, ठीक है। सो यूजिंग अ वेस्टगार्ड मल्टी रूल सिस्टम डिस्क्राइब्स द कंट्रोल वैल्यूज फॉर ईच डे इन द फॉलोइंग। बल्कि ऐसा करते हैं, इंस्टेड ऑफ सबमिटिंग इट आप अभी इसको एक्टिविटी को करें और मैं अभी एंड पे आपको रिजल्ट्स बताती हूँ। तो अपने आपको खुद चेक करें कि आप लोगों ने पिक कर सकें रूल्स वायलेशन और नॉट। और ये आपको एक लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये वन टाइम से नहीं होगा, ठीक है। यू हैव टू मेक योर आईज इसके कंफर्टेबल विद दीज एलजेस, कि आप जब देखें तो आपके लिए इजी हो देखना, ठीक है। इफ इट्स योर फर्स्ट टाइम डोंट वरी, इट विल टेक टाइम। So this is the glucose level 1 control and this is the glucose level 2 control. Here you can see the number of days. 21 से 44 days हैं ये, 21 22 23 24 till 44। मैं इसको आई हैव अभी टाइम है मेरे पास, मैं आपको 5 मिनट्स देती हूँ, आप इसको अच्छे से देखें दोनों कंट्रोल को, और जो डे पर जो वायलेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है डे 23 पे कोई वायलेशन हो रही है, दिस इज द मीन। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं, 100 पे के 195 के बीच में लाइन है, दिस इज मीन। ये आपकी 1sd है, दिस इज योर 2sd एंड दिस इज योर 3sd, ठीक है। सिमिलर इज द केस विद दिस इज योर मीन, this is your 1sd 2sd 3sd and this is your the dotted line है -1sd -2sd -3sd। इसी तरह ऊपर भी बना हुआ है। अब आपने देखना है किस डे पे लेवल 1 में कौन सा कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको ये हैंड्स ऑन के लिए एक्सरसाइज दे रही हूँ। आप सबसे पहले तो आप मुझे ये करें, फिर मैं आपको एक एलजे प्लॉट करने के लिए दूंगी। सो स्टार्ट picking up the rules here on the LJ.
Okay, I'm getting the answers. आप लोगों का टाइम है, प्लीज अभी आप टेक योर टाइम, आपको मैं अभी और दे रही हूँ. लास्ट 2 मिनट्स आप लोगों के पास हैं. अच्छा, मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ, काफी आंसर्स तो आ गए हैं. आप लोग आंसर्स लिखें, मैं चेक भी करूंगी कि समझ भी आया आपको कि नहीं. अच्छा, एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द करेक्टिव एक्शन फॉर रेंज फॉर एस. रेंज फॉर एस के लिए आपने ये देखना है कि क्या करा रहा है रेंज फॉर एस. रेंज फॉर एस जब आएगा रूल वायलेशन, तो एरर कौन सा होगा. when you once you know about the error, then you will see the corrective action. ठीक है, तो अब अगर रेंज फॉर एस है, तो आपके पास जो एरर होगा वो रैंडम एरर शो करता है रेंज फॉर एस. ठीक है. अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि रैंडम एरर के कॉजेस क्या होते हैं.
रैंडम एरर होता है जो बहुत क्विक होता है, लाइक इट इज एन इमीडिएटली आप होता है, आता है और चला जाता है. इट्स लाइक अ नाइटमेयर. ये आई एम सॉरी, आई एम पिकिंग डॉक्टर आमिर एजाज वर्ड्स. वो मुझे याद है हमेशा कि मैं कहते थे कि इट्स अ नाइटमेयर. तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहा है कि रैंडम एज अ नाइटमेयर, वो आएगा और चला जाएगा और आपको पता ही नहीं चलता. और आप जब पिक करते हैं तो ऑब्वियसली पता चलता है कि आप पिक करेंगे, लेकिन वो किस उसका रीजन जो है ना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिक. जैसे अगर आप का एक टेक्नोलॉजिस्ट इज वर्किंग ऑन द टेबल और फॉर फॉर उसने कहा मैं चाय भी कह रहा हूँ, देन उसकी पाइपेट से किसी और ने चेंज ऑफ हैंड हो गया, दैट कैन कॉज रैंडम एरर. सही है, तो आपको रीजंस पता होने चाहिए कि क्या कॉजेज हैं रैंडम एरर के. देन यू विल इन्वेस्टिगेट. सही है, फिर आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है. मुझे काफी आंसर्स आ रहे हैं, मैं अभी अभी मैं अपने आंसर्स नहीं बताऊंगी, आई वेट के सब कर लें, क्योंकि अभी भी लोग भेज रहे हैं मुझे. आई सी कि कोई क्वेश्चन और आए तो मैं उसका आंसर कर दूं. गुड. वार्निंग रूल तो आपको पिक करना चाहिए इसमें. अच्छा, somebody saying कि if we reject the previous runs due to the errors, then महविश का क्वेश्चन आया ये, then there is no 10x. हाँ राइट, अगर आप इसको डे टू डे बेसिस पे करेंगे तो आप 10x तक जाएंगे नहीं. एग्जैक्टली. exactly. अच्छा, I'm going to give last minute ताकि हम आगे मूव करें, और फिर हम कुछ क्वेश्चन होता हम वो भी ले लेंगे. सही है. हम्म, काफी लोगों ने आंसर किए हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली करेक्ट. टू टू इट इज द वार्निंग रिजेक्शन रूल, इट इज शोइंग a systematic error. ठीक है. चलें, अब मैं आपको एक्टिविटीज को हम वो करते हैं एंड आई एम शोइंग यू द रिजल्ट्स. So this is the answers for their activity. डे 21, डे 22, जिसने इन डेज पे कोई वॉलेशन निकाली है तो वो दैट आपने कोई जबरदस्ती वॉलेट किया रूल्स, वो इन कंट्रोल हैं. अब इन डेज में आप देखिए किसी ने लिखा है कि डे 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36 एंड 44. 36 से 44 तक all controls are within their limits. ठीक है, there is no rule violated on these days. अब आपने वो खुद चेक करें कि किस किस ने इन डेज में वायलेशन निकाली है. लेट मी चेक अगेन. एक दफा हम चैट में जाते हैं. अच्छा, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि 2 2s अगर आता है, जब दो कंसेक्यूटिव आपके आउट ऑफ कंट्रोल होंगे,
तो उसको हम कहते हैं 2 S, और जब 2 S आएगा एरर तो हम कौन सा रूल वायलेट होगा, तो दैट शोज द सिस्टमैटिक एरर। अच्छा, अब देखते हैं डे 23, 28 और 29 पे 1 2 S हो रहा है। डे 25 पे अब आपको मैं दोबारा चार्ट पे लेके जाऊंगी, अब आपको देखेगा डे 25 पे 1 3 S है, डे 32 पे रेंज 2 2 S है, डे 35 पे रेंज 4 S है। ठीक है, सॉरी मैं इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं। ओके, आई एम मूविंग इट अवे। चले, दिस इज द आंसर की। So the last slide is, this is very important. If your quality is good, it is invisible. Nobody is saying you have a very good quality. ठीक है, it is invisible actually. But it is impossible to ignore when it is bad. So you have to have a very good quality control system in your lab, and you should know how to see and how to interpret or how to take corrective actions to improve the quality of your lab. So this is the last slide, and thank you for bothering me. अभी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आई होप कि आपको क्लियर हुई हो चीज़ें। मैंने मीन की कैलकुलेशंस और मीडियंस और मोड, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि ये बहुत दफ़ा रिपीटेडली बात हो चुकी है, एंड दिस इज़ वेरी इजी कि आपको मीन मोड और मैं मीडियन बताती, तो मैंने उससे बेहतर आपको ये बताया। इफ़ यू नीड टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, अगर आपको नहीं कैलकुलेट करना आना, यू कैन एनी टाइम यू कैन ईमेल मी और मैसेज मी। आप डॉक्टर अर्शु को अपनी क्वारीज भेज दिएगा, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगी, और मैं आपको उस पे वो कर दूंगी रिप्लाई बैक। सॉरी, आई थिंक ओवर टू द एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी आप अभी इस वक्त हैं। Okay. Thank you so much, Dr. Sherbano. Wonderful lecture and very very interactive, और मजा आ गया आज का लेक्चर। वैसे तो सारे ही लेक्चर थ्रू आउट बहुत अच्छे जा रहे हैं, बट लेकिन जो है टुडे लेक्चर इज वेरी 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 इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेक्टिव, और जो है बहुत अच्छे से रूल्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स जो है समझ आए। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हैं। अब नाउ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन स्टार्टेड। तो एक क्वेश्चन यहाँ लम्स की तरफ से सादिया हैं, शी विल आस्क, और तो उसके बाद हम बाकी दूसरे बहुत सारे हैंड रेस्ड नजर आ रहे हैं, और वन बाय वन क्वेश्चंस लेते जाते हैं। डॉक्टर शेरबानो विल गिव द आंसर्स। सो प्लीज सादिया, आस्क द क्वेश्चन। How to calculate percentage of data points? How to calculate percentage of data points? मुझे How आपकी आवाज नहीं आ रही, आई एम सॉरी, आई कैंट। हेलो, to calculate percentage of data points? How to calculate percentage of data points? Dr. Sherbano, kindly check your volume. Everything is fine over here. Dr. Sherbano, kindly unmute and check your volume. सॉरी, कैंट हियर यू। मुझे आवाज नहीं आ रही है कि क्या मुझे अनम्यूट का एक मैसेज आया है अभी, मैंने होस्ट से आया तो मैंने अनम्यूट तो किया, लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही है। इनसे पूछ ले, कुरान से उनके पास आओ।
Dr. Shehbanu, can you hear me? ठीक ठीक. Okay, you can ask questions directly to Dr. Shehbanu. एक मिनट रुकिएगा जी. Dr. Ashi, you can ask questions. How to calculate percentage of data points? परसेंटेज किस चीज के लिए? सॉरी, you're talking Percentage of data points. mean of your data point, right? जी. अच्छा, मीन के लिए आप ये करेंगे कि इफ यू हैव, फर्ज करें आपके पास 10 वैल्यूज हैं, लाइक आपने 10 नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है. आप उनको प्लस करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं. अगर आपके पास 10 वैल्यूज है तो 10 से डिवाइड करेंगे, अगर आपके पास 15 है तो 15 से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट योर मीन. और परसेंटेज तो आप 100% की बात करी है. व्हाई यू वांट दैट? आई डोंट गेट इट. If I understand her question, data points वो हैं जो आपको given values दी गई हैं. Let's suppose कि अगर आपने ग्लूकोज जो है डे 20 तक रन किया है, तो डे 20 तक जो ग्लूकोज की वैल्यू है वो है, उसको परसेंटेज में नहीं है वो डेटा पॉइंट, वो एक्चुअल वैल्यूज हैं जो आपको दी गई हैं विद यूनिट्स. वो चाहे हीमोग्लोबिन की हो सकती है, वो चाहे ग्लूकोज की हो सकती है, वो चाहे क्रेटिनिन की हो सकती है. तो वो जो डेटा पॉइंट्स है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा पॉइंट्स की ऑन एलजे चार्ट या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट न्यूमेरिकल वैल्यूज, दीज वैल्यूज एक्चुअली वैल्यू जो कि आपको मिली है, आपने जब रन किया है अपना कोई भी, जैसे एनालाइट है, लेट्स सपोज इसमें अगर ग्लूकोज की वैल्यू थी, तो ग्लूकोज की जो वैल्यूज आपको जो है प्लॉट हुई है ना, यानी कि आई है डे 1 पे ग्लूकोज 110 था, 105 था, ये वो वैल्यूज हैं जो आपको आपने ग्राफिकली, यानी कि आपका जो ग्राफ पेपर है, एलजे चार्ट है, उस पे प्लॉट की है. तो उसमें जो है, इज देयर एनी कंफ्यूजन? जी बिल्कुल, डॉक्टर अर्शी इज वेरी राइट. आप जो कंट्रोल रन करते हैं और जो उसके रिजल्ट्स आते हैं कंट्रोल के, अगर आप ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं तो आप ग्लूकोज का कंट्रोल का लेवल 1 या लेवल 2 रन करते हैं, तो अब अगर आपने एक कंट्रोल रन किया और उसमें जो वैल्यू आती है, आपने एग्जैक्टली वही वैल्यू पुट करनी है. आप अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में देखेंगे कि वो वैल्यू कहाँ पे फॉल कर रही है. ठीक है, डे 1 पे कर रही है तो डे 1 को पिक करेंगे और ऊपर से वाई एक्सिस से आप लेंगे कि कहाँ पे वो वैल्यू फॉल कर रही है. 110 और 100 के बीच में कर रही है, फॉर एग्जांपल 108 रिजल्ट है. And Dr. Sherbano, I think participants are confused in the Gaussian distribution. When you will show again the slide of the Gaussian distribution, in the Gaussian distribution, actually the total results which you plotted on the graph paper, क्यूमुलेटिव सम है कि आपका जो कंट्रोल है उसके अंदर जो है आपके पास जो 13S, जैसे हमने दो तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एलजे चार्ट पे कि आप 1S, 2S और 3S, लेकिन जब आप इन टर्म्स ऑफ यू विल टॉक रिगार्डिंग द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आपके पास 67%
विद द मीन जो है ना प्लस माइनस जो है वैल्यूज आपकी कहाँ फॉल 67% रिजल्ट फॉल कर रहे हैं, आपका ग्राफ जो है शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द लेफ्ट. दिस इज द टू अनदर प्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफिकल रिजल्ट्स कि आपके रिजल्ट्स जो है विद इन 67 और 65% के आ रहे हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में, या फिर आपके पास 95% और 99%. तो 99% की तरफ अगर 95 से ज्यादा आपके पास मूव हो रहा है आपका रिजल्ट, तो इट मीन्स कि आप जो है यू आर गेटिंग, बिकॉज अगर बहुत सारे लोग दो तरह से जिनके पास एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल आते हो उनके अंदर वो ज्यादातर आपके पास जो रिजल्ट्स होते हैं वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपके पास ए और ई वो जो आगे आप अभी आप देखेंगे जब आपको प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग होगी, तो ये इसमें दो में कंफ्यूज मत हो. एक आपको डॉक्टर शेहरबानो ने पढ़ाया जो था कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो एलजे चार्ट पे प्लॉट करके 1s 2s 3s और मीन से डेविएशन देख लें. दूसरा जो टर्मिनोलॉजी थी प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट वो थी आपकी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में वो 67% और 98%, 95% और 99%. आई थिंक डॉक्टर शेहरबानो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज द टू वो कंफ्यूज कर गई है. यस यस. आप उसको प्लीज, वो तो मैंने आपको सिर्फ एक समझाने के लिए उसको अटैच किया था, वो तो एज अ होल आपका एक जो बेल शेप कर्व है मैं वो समझा रही थी. तो एलजे पे आपको कहीं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करना है, ठीक है. एलजे तो आपका ऑटोमेटिकली प्रिंट होगा, जैसे इट्स अ नेचुरल थिंग. जो आपके रिजल्ट्स आएंगे यू हैव टू प्लॉट इट ऑन योर एलजे चार्ट. यू कैन नॉट चेंज द रिजल्ट्स कि आप उसको गॉसियन में लाने के लिए कुछ चेंज करें, ऐसा 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 नहीं होगा. जो रिजल्ट आएगा यू हैव टू प्लॉट इट एंड देन यू विल सी योर एलजे कि वो किस तरह का हो रहा है, ठीक है, किस तरह की पिक्चर आपके एलजे की आ रही है. थैंक यू. पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने हैंड रेज किया है उनको वन बाय वन मैं अनम्यूट करता जा रहा हूं. दे कैन आस्क क्वेश्चंस. दीवान ज्ञानचंद साहब जो है आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. दीवान ज्ञानचंद साहब आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए. Hello, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. Madam, can you go back side on the slide of percentage rules Gaussian law? अच्छा, आई नीड टू शेयर इट अगेन. वेट अ सेकंड. सॉरी, किस स्लाइड पे जाऊं मैं? Gaussian law. वेट अ सेकंड. Actually, I've closed it. Let me again share it with you all. आप क्वेश्चन प्लीज अपना कंटिन्यू करें तब तक मैं इसको शेयर करूं. आप कुछ स्लाइड पे पूछना चाह रहे हैं? या फिर आप एक्टिविटी स्लाइड में जाए. एक्टिविटी स्लाइड जो है आपने हाँ, दी मैं थी एक्टिविटी स्लाइड पे जाती हूँ. हाँ जी, उसमें क्या है? मैडम उसमें लिखा हुआ था लेवल नंबर 2 आई थिंक है. उसमें जो 10 कर्व जो है वो लास्ट में एक्सिस मीन शिफ्ट हो चुका है. तो वो मैंने वो 10x आंसर दिया था, तो आपने बोला कि वो 10x नहीं है. 33 से 44. लेवल 1 में, लेवल 1 में, जी लेवल लेवल 1 है आई थिंक. 35 से 33 से 44. 33 से, अच्छा 33 तो ऊपर है, 34 से स्टार्ट हो रहा है. 33 से 44 तक 10x है ये. हाँ, ये 10x है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. ओके थैंक यू मैडम, थैंक यू. बिल्कुल ठीक है आपने. लेकिन 33 से नहीं है, 33 मीन के ऊपर आ रहा है लेवल 1 में, ठीक है. मैं आई वांट टू शेयर इट अगेन. ये 33 जो है ये मीन पे है, तो ये स्टार्ट होगा फ्रॉम 34 टिल आपका जा रहा है आगे तक, ठीक है. तो ये वाकई ये 10 जो है वो वन साइड और मीन पे है, और ये 10 रूल वायलेशन है, 10x है. थैंक यू मैडम. मैडम वन अगेन क्वेश्चंस. जी जी प्लीज. मैडम कैन यू सी स्लाइड्स नंबर आई थिंक लेवल नंबर 1 एंड लेवल नंबर 2. उसको वो स्लाइड्स शो करें आप प्लीज. मुझसे शेयरिंग एक्चुअली नहीं हो रही. आई एम रियली सॉरी, मैं एम वेरी पुअर विद दिस आईटी स्टफ एंड डॉक्टर शहबानो. अच्छा मैडम. जी, इफ एनीबॉडी गाइड मी तो मैं इसमें कर डॉक्टर देती हूँ. शहबानो, जी जी. आप मेन स्क्रीन पे देखेंगे आपको नीचे चैट के बराबर में ग्रीन कलर का बॉक्स नजर आएगा. हाँ,
मैं उसको प्रेस कर रही हूँ, वेट जस्ट गिव मी अ सेकंड। आप स्क्रीन पे प्रेस करेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन ओपन हुई हुई है? नहीं, पहले उसको ओपन करूँ? जी, पहले प्रेजेंटेशन ओपन कीजिए। अच्छा ठीक है, अच्छा सही है, वो मैंने कर दी। ओके, देन आप शेयर स्क्रीन पे जाइए, यू विल फाइंड प्रेजेंटेशन ओवर देयर। ओके, ये जो है ये जूम, अब जस्ट गिव मी अ सेकंड। सॉरी, ये जूम की स्क्रीन मेरे पास शो नहीं हो रही है। आप देखें टास्क बार पे, आप पहले तो प्रेजेंटेशन को आप फुल स्क्रीन से हटा दीजिए, प्रेजेंटेशन ऊपर होना चाहिए, प्रेजेंटेशन हटा दी, हटा के हटा दी मैंने देन जी। यू विल फाइंड जूम एंड या टास्क अब बार। मुझे आ गया जूम, जी। बिल्कुल अब आ गया। अब प्रेजेंटेशन पहले ओपन करूंगी और फिर उससे वो करूंगी। जी, प्रेजेंटेशन तो आपकी ठीक है, ओपन है ना? हाँ जी अब ओपन है। बस आप सिर्फ जूम पे जाइए, ब्लैक वाली स्क्रीन पे, वहां जाके स्क्रीन शेयर पे क्लिक कीजिए, आपको प्रेजेंटेशन नजर आ जाएगी। शेयर स्क्रीन, प्रेजेंटेशन आ गई, बिल्कुल। ये जो आप क्लिक करके ओके करेंगे, जी आ गई। इसको अब आप फुल स्क्रीन कर लीजिए। अच्छा एक मिनट, जी ठीक हो गया। अब मैं चली आती हूँ। अच्छा, गॉसियन कर्व वाली मैं बता देती हूँ कि गॉसियन कर्व इज, क्वेश्चन है कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट इट इज नॉट रिलेटेड टू एलजे चार्ट। इट इज रिलेटेड टू एलजे चार्ट। ये सिर्फ एक मैंने आपको विजुअल एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आपके डेटा पॉइंट्स बताए हैं कि एक अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो डेटा फॉल करता है वो किस तरह करता है, वो परसेंटेजेस क्या है। ठीक है, तो जो गॉसियन पैरामीटर्स हैं, जो गॉसियन रूल्स हैं, वो ये कहते हैं कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आपका विद इन लिमिट्स डेटा होना चाहिए, और जब डेटा विद इन लिमिट्स फॉल करता है, ये सॉरी क्वेश्चन मैंने अभी चैट में देखा है, मैं उसका आंसर कर रही हूँ कि जब डेटा पॉइंट्स आपके विद इन योर डिसीजन लिमिट्स फॉल करेंगे तो यू विल हैव अ बेल शेप कर्व, ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी बड़ी एक पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी अराउंड योर मीन। ऐसा नहीं होगा कुछ पॉइंट्स आपके मीन से ज्यादा ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे, आपकी जिगजैग एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन आ जाएगी। अगर आपका सिस्टम इज वर्किंग परफेक्टली वेल, तो आपका जो एलजे कंस्ट्रक्शन होगी, जब आप मैनुअली अपने एलजे को देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि दिस इज गोइंग अराउंड द मीन इन अ वेरी प्रॉपर एंड फॉर्मेट। तो ये प्रेजेंट करेगा आपको कि ये गॉसियन रूल को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अगर अपने डिसीजन लिमिट्स के अंदर है, और अगर तो एक तरफ चला गया तो अगेन वो वाइडनिंग होगी या पे शिफ्टिंग ऑफ द डेटा पॉइंट्स होगी। तो दैट विल शो यू कि नो, नाउ इट इज वायलेटिंग द रूल्स। तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि ये तो पूरा एलजे एक तरफ वायलेट हो गया है। तो अब वो कब आपको पिक करेंगे, जब आप अपने एलजे को डे टू डे मॉनिटर करेंगे। सही है, मैं आगे जाती हूँ जी। और कोई क्वेश्चन? मैं चैट में देख रही हूँ, वन बाय वन में आंसर अनवर कर रही अली हूँ। धीराज साहब, kindly unmute yourself and ask your question. Anwar Ali, kindly ask your question. Kindly unmute yourself. अच्छा, एक क्वेश्चन है, सॉरी, फरियाल जफर का। अनवर अली साहब पहले कर लें तो फिर मैं इनका भी क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। आई थिंक अनवर अली साहब जो हैं वो नहीं दे पा रहे जवाब। सही है, एक और अस्सलाम क्वेश्चन अब्दीन है। साहब, kindly unmute yourself and ask your question. जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहर बानो, थैंक यू जी सो मच फॉर योर नाइस लेक्चर। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो लेवरेजिंग चार्ट बताया वो आप बताया है क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे। या व्हाट अबाउट सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, आप जो है वो एलजे प्लॉट करते हैं या नहीं? अच्छा, फॉर सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपके पास कोई रिजल्ट्स तो आएंगे नहीं। डू यू गेट नंबर्स इन सेमी क्वांटिटेटिव यस क्वालिटी कंट्रोल? यस, हाउ लाइक लेट्स यू विल सपोज गेट दैट अगर पॉजिटिव और अगर आपके नेगेटिव? पास, जी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेट्स सपोज दैट आपके पास है 10 आपकी जो है वो बेसलाइन है, तो लेस देन 10 इज नेगेटिव और मोर देन 10 इज पॉजिटिव। सो उसमें जो है वो नंबर्स आ रहे होते हैं कि अगर 10 है तो नहीं, वो कट 15 ऑफ्स होते हैं। 20 ठीक है, 30 दीज आर द जी कट एक्चुअली ऑफ कट होते हैं। ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल, जो सेमी बिल्कुल, क्वांटिटेटिव में कट ऑफ होते हैं, यू कैन नॉट प्लॉट दिस दोज ऑन द एलजेस। ठीक है, उसमें ये होता है इवन कि आप, पॉजिटिव कंट्रोल, या या
बिल्कुल. तो पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल्स को you cannot put in on the LJ, put them on the LJs. These are only the cutoffs जो आपको शो करते हैं. उसमें जो कंट्रोल्स भी चलते हैं, एक मिनट होल्ड किएगा. डॉक्टर आमिर एजाज, if it's there, yes, why not? I Sir, just got the message Amir from just Dr. kindly Arshi. unmute. I think Dr. Amir wants to say something. Please go ahead. मतलब obviously how is it possible कि if he's here और मैं बात कर रही हूँ. Assalamu alaikum, sir. I'm here. I've listened every word of your talk. Sir, right thank from the God beginning. मुझे पहले नहीं पता चला you are here. मैं शायद दे ही ना सकती फिर. And I'm so excited. I can proudly say, if you allow me, that she's my student. And Thank you so much. and when she came from Karachi to FIP, and all the events were coming to my mind. What happened to you? Yeah, I still remember everything. Yeah. Left in your house and fracture and Yeah. Thank you for your support, sir. Okay, but I'm so excited, so excited. You talked so well. Not only the content was superb, you have developed you have developed excellent communication skills and teaching methods. Thank you, sir. Especially the interactive. I'm so happy. Please Thank continue you so it much. in your future also. And Thank the you. participants also very actively they participated in the discussion. Just very brief comment because we are already ahead of the schedule. We have passed 1 hour. Yeah. Right from the beginning, I must tell you that these quality control methods, they are only and only for quantitative data, not for qualitative, not for semi-quantitative. You cannot. So all the specialties of pathology which generate quantitative data, for example, chemical pathology, some part of the hematology, some part of the serology, they can use it, but not for semi-quantitative and not for qualitative also. So this is very important. Secondly, the, we are this is a very useful seminar. This whole course is very important, and now there are 4 or 5 lectures have already been done. So I think it's a time that we should have a recap also what we have done. We have talked about control material. We have talked about the basic statistics and some other basic steps. And Dr. Sharbanu has was mentioning that the statistics will be dealt separately. Yes, we have. There was a full lecture on it, and that was also superb. And but what he was going to tell you is probably the most important part of the lecture, if not most important, one of the most important part of the course, the whole course. And mostly most of you are students. I must tell you, whatever exam you are going to appear, or might you have appeared in some exams, this quality control and LJ chart is always part of them. uh, we are dealing with the CPSP exams, MPhil exams, DCP exams, PL, MS, MSc, everywhere. If it is a pathology exam, laboratory exam, QCs and LJ charts are there. So please be careful, and you can get mastery of it only and only if you practice it. Just in 1 week, 1 month, you can't learn it. You have to practice this daily, and only then you can develop reflexes on it. As Dr. Sharbanu was showed very nice picture of grasshopper. You can pick the grasshopper only if you see the grass daily. If you see the grass daily, only then you can pick up the grasshopper. So marvelous. I think we all will remember this grasshopper. So please do practice it. Even if you are doing it in on your auto analyzer, you are using auto analyzer. Some uh, some of the analytes you must do manually. Only then you can learn it. Thank you very much. And thank you, Dr. Ashi. अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे, आप सबको लियाकत यूनिवर्सिटी वालों को। आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम शुरू किया है, और उससे जो
अल्टीमेटली हमारे बेनिफिशियरी कौन है? आर पेशेंट्स, जिनको अब बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो आपको सबको अल्लाह मियां बहुत जज़ाए खैर दे। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Participant Nuran, kindly unmute and ask your question. Nuran, kindly unmute yourself and ask your question. Think no question नहीं पूछना. User iPhone, kindly ask your question. जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसबा तारिक शेख सैद रहीमिया खान से बात कर रही हूँ। इन वालेकुम डॉक्टर रुखसबा। शहर क्लोज समिट, कैसे हैं आप? ठीक So ठाक, I कैसी was हैं आप? second Professor Amir Ejaz sir that it was a marvelous and wonderful presentation. I was unlucky to join it previously because I didn't just notice the link to which was shared. But again, I congratulate on the behalf of Sheikh Said and to all of you in the university. It was wonderful. All of the students there in the chemical lab, they were very attentive to attend this lecture and they were making notes. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा जो काम That's है great. सीनियर्स का वो आप लोगों ने शेयर किया and that's we are thankful for it. Just to add 2 lines in this wonderful presentation. Please go कि ahead. हम यहाँ पे जो statistically when we go with the LJ chart, that gives you a very close look into the different day-to-day variations in the quality control, as you have mentioned in your presentation. But other than that, the statistical analysis, which requires 2 levels of control or so, which is basically basic minimum requirement for the chemical pathology lab. So there is another analysis like sums and moving averages. So those people who are actually in hematology, dealing with the indices, red blood indices, तो उसमें जो moving averages है वो एक मेथड है जिससे मैंने इसको तैयार किया था अपने एग्जाम के लिए. तो उसमें एवरेजेस से मुराद ये होती है कि बुल्स मेथड्स को कहते हैं, मे बी सर इसको बेहतर तरीके से बताएं, लेकिन जहाँ पे सेल काउंटर यूज होते हैं MCV, MCH, MCHC वगैरह, तो उसमें इस मेथड में ये करना होता है कि जो पॉपुलेशन जो ईच डे आपके रिजल्ट्स हैं रिमेन कांस्टेंट रहते हैं और उनके इंडिसेस को आप स्टेबल रखते हैं इस बेसिस पे, मूविंग एवरेजेस मेथड. एंड सेकंड जो कस्टम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है ना, वो इस तरह से इजी है कि वो शिफ्ट और ड्रिफ्ट्स को बड़ा इजीली पिक करता है, बेटर देन एलजे चार्ट. तो बस ये जस्ट मैंने 2 चीजें इसमें आपके इसमें ऐड करनी थी. मे बी दे विल बी सम सिग्निफिकेंस टू योर प्रेजेंटेशन. तो वो आपको बहुत इजी देती हैं जो कस्टम वैल्यूज और मूविंग एवरेजेस. इट्स अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल. Thank you very much. God bless you. Thank you so much. Thank you. Syed Mohammad Shafiq Saab, kindly unmute yourself and ask your question. Oh, this is not allowed. Hello. जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. थैंक यू डॉक्टर साहिबा, बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह आपका लेक्चर, बहुत ज़बरदस्त रहा. और मैं लम्स को ख़ास तौर पे बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है इन्होंने जो है प्रोवाइड किया है जिसमें से ऑल ओवर पाकिस्तान जो है पार्टिसिपेंट दे आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग एंड वी आर लुकिंग फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ केयर क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी. तो एक बहुत अच्छी काविश है और ये अगर ये एक प्लेटफॉर्म जो है ये इस्टेब्लिश हो जाए और आगे इसी तरह बढ़े तो हम लोग अपना अपना एक रोल अदा कर सकते हैं इसमें. प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरा सवाल ये था कि हाउ मेनी वेस्ट गार्ड रूल वी कैन अप्लाई इन द लैब, सिलेक्शन ऑफ वेस्ट गार्ड रूल एंड व्हाट रूल सेलेक्ट फॉर सिस्टमिक एरर एंड रैंडम एरर. इससे मैंने आपको बताया था कि जो 1 to S तो वार्निंग रूल है, वो तो आपको खुद पिक करेंगे, आप देखेंगे. वो आप अप्लाई नहीं करेंगे, उससे आपका खामखा का फ्लैग एक आ जाएगा. जो सिस्टमैटिक हैं और जो रैंडम है उसमें जैसे 1 3S इज अ रैंडम, रेंज 4S इज रैंडम
or 2x is systematic, 10x is systematic error. So this is how you can proceed if you see these rules. Now it depends on your system कि आप कौन से rules apply करते हैं और किन analysis पे आप लगाना चाहते हैं. अगर आप 1-3s से स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट आपके एक फर्स्ट रूल्स हैं, तो आप देखेंगे कि आप कितना इसको मॉनिटर कर सकते हैं और कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं. मेरे ख्याल से डॉक्टर आमिर आप थोड़ा सा इस पर एलेबरेट करेंगे कि क्या ये लैब्स जो हैं इनके फाइनेंशियल जो फिर इसमें आ जाते हैं डिसएग्रीमेंट्स, उसमें फिर लैब टू लैब डिपेंड करेगा कि वो क्या करेंगे. ऑब्वियसली इफ डॉक्टर आमिर इज विद अस, क्योंकि रिजेक्शन ऑफ जो पूरा आपका बैच है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये समझ रहे हैं? जी सर प्लीज. जी डॉक्टर शहबानो, प्रिंसिपल तो यही है. द रूल ऑफ रिजेक्शन मींस यू हैव टू रिजेक्ट द बैच. या काइंडली ये शेयरिंग खत्म कर देना फिर हम. या जी. हाँ, what I was saying to you that rule is that you have to reject the whole batch. Yeah. And because you cannot compromise patients' results, value life on just on basis of saving some money. That's why there is a concept of quality assurance. So I think the speaker has asked a very important question about the economy or finance. Probably he has asked about that. So that's why there is another concept of quality assurance. Quality assurance checks the whole process of quality. I mean, that is a preventive sort of thing. So if you do quality assurance, then quality controls will not fail. Okay, I hope you got my point. If the lab is the lab manager or the pathologist, they are looking after all the aspects of laboratory process, the laboratory tests, the reagent preparation, temperatures, expiry dates of the reagents, control material storage, etc. Then this situation will not happen that you have to reject the whole batch. That's why in industry, you told me that in the start of your lecture that this concept of quality control, it came from industry. So Yeah. in industry also, they introduced this concept of quality assurance. Quality assurance looks after the whole process. Thank you. So you are saying that prevention is better than cure. Oh yes, yes, yes. Again, it's a prevention. But yeah, it's if you have not done it, and if your QC has failed, then you should not dish out the results. Yes, there is one exception to that. For example, you have done an immunoassay test or some very expensive test, and your level 2 has failed, while level 1 is okay. So all the reports which are around level 1 values, that is normal you can values, dish out you them. can dish out them, and Yeah. you can hold the higher values. This is one Yeah. exception. Thank you very much. Thank you, sir. So basically, sir, ये भी तो एक बात है ना कि quality control is an expensive thing, but after you will get the results, वो आपको फिर बाद में pay off करता है. जी बिल्कुल. आप इसको हम इसको एक्सपेंसिव नहीं कहना चाहिए. ये right from the beginning, when you are planning a budget for your lab, you must include QC material in it. QC, बिल्कुल. So it is should be part of the budget. But as I said earlier, if you are looking after all the aspects of the laboratory, then your results will not fail. Thank you. Thank you, sir. If you allow me, last thing to be added. Yeah, please. Probably we will not be able to discuss it in any subsequent talk. That's why I'm saying it here. There is a new concept from Westcard, that is Sigma Westcard rules in Sigma metrics. Yeah. In Sigma metrics. We will have a lecture on method validation after maybe two months. Probably I have to do this method validation. And if you have done the method validation, when you start test,
For example, you have started alpha-fetoprotein in your lab, and you have done thorough method validation, and you have found that your performance of your test is quite good or excellent. Then you can ignore 2 or 3 Westgard rules on the basis of that performance. This is called Westgard rules in sigma metrics. So I can only we can only talk in detail once we have done the method validation. And last thing, I would advise all of the students to be a part of a member or purchase the Westcard website. That is a very good resource. I'll give you some introduction next week, next Friday. I will spare 15-20 minutes from my lecture to give you some resources which are available for QC. I will tell you about 2-3 books and the website. And if possible, I will share the password with you also. Thank you. Thank you very much. Shahriyar Alavi Sahab, kindly unmute and ask your question. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मेरा ये 2-3 और भी चीज़ें थी एज ए प्रैक्टिकली स्पीकिंग, कि जो यूजुअली लैब्स वालों को प्रॉब्लम आती है एलजे चार्ट डिलीट करने में, इसमें से ट्रेंड वर्सेस शिफ्ट कैसे चेक करेंगे, और डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल चार्ट एंड रन चार्ट, and difference between total error or total error, and what are the specification limit and control limits. असल में इस पे जो इंसर्ट शीट में आते हैं स्पेसिफिकेशन लिमिट, उसमें सिलेक्शन करने में, और कंट्रोल लिमिट जो हम लोग एनालाइज करते हैं, इसमें आमतौर पे लोग जो हैं बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या सिलेक्शन करेंगे? इसमें आप एक पहला मैं कहता 1 by 1 चलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके व्हाट आर द ट्रेंड्स एंड शिफ्ट्स पे आपने बात की है। एक्चुअली दिस मैंने इसको कवर नहीं किया। मैं आपको थोड़ा सा ट्रेंड्स और शिफ्ट्स का मोर देन 6 आपके ट्रेंड होता है कि ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा होता है। ग्रेजुअली वन साइड ऑफ मीन से वन साइड ऑफ मीन जा रहे होते हैं कंट्रोल वैल्यूज, और शिफ्ट होता है कि जो आपका डेटा कंट्रोल पॉइंट है वो सडन शिफ्ट उसमें आता है। So that's a separate actually topic. I don't know if anybody has covered it और अभी आगे ये होना है किसी प्रेजेंटेशन में या किसी इसमें, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और मैंने तो उसको कवर नहीं किया, बट मे बी नेक्स्ट किसी प्रेजेंटेशन में ट्रेंड टू शिफ्ट पे बात हो। उसके फिर अलग कॉजेज होते हैं। यू विल एवेल्युएट कि अगर तो मोर देन 6 और में मैं ठीक बता रही हूँ ना, इट्स लाइक 6 और मोर देन 6 वैल्यूज आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑन वन साइड ऑफ द मीन इज द ट्रेंड, और सडन शिफ्ट इज कॉल्ड शिफ्ट, और फिर दोनों के अलग अलग कॉजेज हैं। फिर देन यू विल सी द कॉजेज फॉर द ट्रेंड एंड कॉजेज ऑफ द शिफ्ट, एंड देन यू विल एवेल्युएट एंड डू द करेक्टिव एक्शन। बट अगेन दिस इज अ सेपरेट टॉपिक जिसपे प्रेजेंटेशन जो एरर्स से बात होगी, जब रैंडम और सिस्टमैटिक एरर के कॉजेज और उनके करेक्टिव एक्शंस पे, तब इसमें ये डिस्कस होगा। एंड व्हाट आपका प्लीज सेकंड क्वेश्चन क्या था? कंट्रोल चार्ट और रन चार्ट में जो डिफरेंस है। कंट्रोल चार्ट और रन चार्ट में आई डोंट गेट इट। मतलब कंट्रोल चार्ट और रन चार्ट, अगर आप नंबर ऑफ डेज देखते हैं ऑन योर एक्स एक्सिस फ्रॉम 1 to 30, और अगर आप रन पे प्लॉट करना चाहते हैं तो आप डेज की बजाय उसको नंबर ऑफ रन्स पे प्लॉट कर लेंगे। इट्स द सेम थिंग, चीज तो वही बनेगी, ग्राफ आपका वही प्लॉट होगा, रूल्स आप वैसे ही अप्लाई करेंगे। The only difference is if you are plotting controls or you are plotting your runs. मैं आपको आंसर कर सकती हूँ आपका, ये जो आप यही क्वेश्चन कर रहे हैं? सॉरी, असल में एज अ हेल्थ केयर क्वालिटी हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं। तो कुछ क्वालिटी इंडिकेटर्स जो हैं वो एज अ रन चार्ट के तौर पे मॉनिटर किए जाते हैं, और कुछ जो है एनालिटिकल क्वालिटी जो है वो कंट्रोल चार्ट पे। तो कंट्रोल चार्ट बेसिकली दे हैव अपर एंड लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, और रन चार्ट जो है वो मॉनिटरिंग एक चलती है, इसमें लिमिट्स नहीं होती। तो ये असल में बाज़ औक़ात ये कंफ्यूज करता है लोगों को।
ये कहाँ के इंडिकेटर्स हैं? सॉरी, आप किसी ऑडिट किसी बुक के इंडिकेटर्स का क्वेश्चन कर रहे हैं? नहीं, एज ए जनरल हेल्थ केयर क्वालिटी पे जब जाते हैं तो जब एनालाइज करते हैं, जैसे अभी तो हम बात कर रहे हैं लैब की क्वालिटी की, एनालिटिकल क्वालिटी की, लेकिन अगर हमें कुछ और आउटकम चाहिए मेजर्स के मॉनिटर करना है, कोई जैसे फर्स्ट कल इन्फेक्शन कंट्रोल रेट्स वगैरह उसको मॉनिटरिंग करनी हो तो उसमें वो फिर अच्छा, आई थिंक दैट इज समथिंग एल्स। वो कुछ आप दैट इज द डिफरेंट स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस जो जिसकी आप बात कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंट, दिस जो मैंने एलजे बताए हैं, दिस इज डिफरेंट। तो आप मेरे दो चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं। एंड व्हाट इज योर थर्ड क्वेश्चन प्लीज, आप उसको ही बता दें। टोटल एरर एंड टोटल अलाउएबल एरर। जी, टोटल अलाउएबल एरर का एक पूरा एक चार्ट होता है। ये अभी मैं चैट में देखे थे कि इस पे भी एक लेक्चर होना है आगे। आई थिंक इट्स बाय ब्रिगेडियर आमिर एजाज। तो उसमें वो पूरा टोटल अलाउएबल एरर के ऊपर लेक्चर है। दैट्स अ सेपरेट टॉपिक एक्चुअली। तो आई थिंक आपके इस पूरे क्वेश्चन को फिर वो आप को लेक्चर ही क्लियर कर देगा। ठीक है, थैंक यू। Hello, जी सर, प्लीज। Dr. Shafiq Alawi. Thank you very much. I'm also a healthcare inspector like you from Punjab, for Punjab Healthcare Commission, and I inspect the various laboratories, not the hospitals. I mainly inspect the laboratories, and they do have such key indicators which you have mentioned. Control means when it is extreme on either side, then and the running is which is variable. So we do not apply such things in the laboratory QC in QC. But these two terms are very important. Probably they are differently used in lab. Uh, Run means, as Dr. Sharbano has told you, for example, you have used your control material twice a day, not daily, twice a day or thrice a day. Then we will call it run. And or you have done it once a week only because the test frequency is very less. So then we will call it a run. We will not write date on it. So it is now preferable that instead of writing date on the x-axis of the LJ chart, you write run, because run 1, run 2, run 3, because you might have done twice a day or you might have done thrice a week or once a week. That's why it is called run. Second, the terminology of control for level 1, level 2, these are materials. So if nowadays it is said that the error in one control should be merged with the error of the second control. For example, if you are talking of R4 error, so if level 1 error is 2s on plus side, and in level 2 error is on the negative side, and again of 2SD, so we will accumulate, merge it, and we will call it R4. So I think this is the only answer which comes to my mind. Thank you. थैंक यू सर। ऐसे टोटल अलाउएबल एरर का भी आपका एक लेक्चर अभी आगे आना है। किसी और पार्टिसिपेंट को कोई और क्वेश्चन है? I think that's all.
Thank you so much everyone. And lastly, मैं आपको एक क्वेश्चनेयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इन गूगल क्लासरूम, प्लीज आप उसको फिल करके सबमिट करा दें। अब आप उसको फिल करेंगे तो दैट वुड बी मच इजियर, क्योंकि उसमें सारे वेस्ट कार्ड और एलजे पे ही क्वेश्चंस हैं, और देन वी विल चेक इट। Thank you so much everyone. Thank you, Dr. Arshi and team.